Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is people at work. Learning topics: occupations outside home, work at home, leisure at home, children at jobs. We all do work to earn money to fulfill our day-to-day needs. Any activity that helps us to earn money is known as an occupation. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं उसको हम occupation कहते हैं. Without money, the sustenance is not possible for any human being. People work according to their capabilities and knowledge. They work as a farmer, carpenter, mason, tailor, potter, cobbler, milkman, fisherman, laborer, clerk, nurse, doctor, teacher and engineer. They do the work to earn their livelihood. Their works are often known as their occupations. तो एक ह्यूमन बीइंग को सस्टेन करने के लिए लंबे टाइम के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है. अगर आप नहीं कमाएंगे आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. लोग अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के जॉब करते हैं, जैसे कॉबलर, मेसन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स. ऐसे अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं. इससे इनको पैसे मिलते हैं और इसको कहा जाता है ऑक्यूपेशन. Occupation outside home. There are different kinds of jobs that people do to earn money. अलग अलग टाइप के जॉब करते हैं जिससे कि उनको पैसे मिलते हैं. Some people sell flowers or ice creams on the roads. Carpenters make furniture, drivers drive buses, taxis and cars, pilots fly aeroplanes, teachers teach and tailors stitch, make clothes. There are many other jobs too. तो यहाँ पे हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि पायलट एरोप्लेन फ्लाई करता है, ड्राइवर्स बसेस, ट्रक्स और टैक्सीज को ड्राइव करते हैं, टीचर्स पढ़ाता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, और भी ऐसी ही अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशंस होती हैं. Number of people do special jobs such as sweepers who clean our streets and policemen who keep our cities safe. All these jobs are important for us. और भी अलग अलग टाइप की स्पेशल जॉब्स होती हैं जैसे कि पुलिसमैन की, स्वीपर्स की, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करते हैं. Work at home. Neha and Ravi live with their parents and grandparents. Their father is a doctor and their mother is a teacher. Every morning, mother makes breakfast and packs everyone's tiffin. Grandmother helps the children to dress up for school. Father drops them to the bus stop and the grandfather picks the children up from the bus stop. Grandmother makes lunch that the four of them eat together. The children do their homework, clean their rooms, keep clothes neatly in the cupboards and arrange their स्कूल बैग्स. तो यहाँ पे हमने देखा नेहा एंड रवि जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का काम करते हैं. जैसे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाते हैं, जो मम्मी हैं वो खाना बनाती है, सबका टिफिन पैक करती हैं, जो पापा हैं वो बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ते हैं, जो ग्रैंड फादर है वो बच्चों को पिकअप करते हैं, फिर ग्रैंड मदर खाना बनाती है जो सब खाते हैं. तो ये घर के कुछ काम हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे करते हैं. Neha helps her mother in the kitchen when she returns in the evening. Ravi and his father lay the table and clean it after meals. Each family member's job in the home makes it a more comfortable place. तो इसी तरीके से नेहा जब वापस आती है तो अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करती है. खाना खाने के बाद जो नेहा के पापा है और जो भाई है रवि, वो उसके बाद टेबल साफ करते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब फैमिली मेम्बर अपने अपने पार्ट पे करते हैं तो घर का काम बहुत ही ईजी भी हो जाता है, किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ता है और बहुत ही कंफर्टेबली आपका सारा काम खत्म भी हो जाता है. Leisure at home. Neha and Ravi play with their friends in the park after doing their homework. At home, they play board games with their grandparents. Mother loves to read books and father do gardening when he is free. In the evening, the family sits together to watch favorite television shows. During holidays, they go on picnics, film shows, take trips to the mountains or visit friends. They also invite friends and relatives over to their home. Leisure times become enjoyable as everyone joins in to make the happy moments. तो leisure at home यानी कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे कि जो नेहा एंड रवि हैं वो बाहर जाके खेलते हैं अपना होमवर्क करने के बाद, घर पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बोर्ड गेम्स जैसे कि लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, वो खेलते हैं. जो मदर हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद है तो वो बुक्स पढ़ती हैं. पापा को गार्डनिंग पसंद है तो जब वो फ्री होते हैं तो वो गार्डनिंग करते हैं. ऐसे ही कभी दूसरे फ्रेंड्स के घर जाते हैं, कभी फ्रेंड्स को अपने घर बुला लेते हैं, और ऐसे ही लोग और पार्टिसिपेट करते रहते हैं और भी ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए.
Children at jobs. Neha and Ravi had seen children selling things at the traffic lights while returning from school. They asked their grandfather about it. Then grandfather told them, "When I was at your age, our family lived in a small town. We learned maths, science, geography, history, but our books were in Hindi. We also learnt English but could not speak it well. Grandmother, who grew up in a village, went to a small school called Pathshala," grandfather told them. तो जब नेहा और रवि स्कूल से वापस आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को देखा चीज़ें बेचते हुए। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये क्यों बेच रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तब ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि जहाँ पे वो रहते थे उन्होंने भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, लेकिन उनकी इंग्लिश फिर भी अच्छी नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो एक विलेज में थी, वहाँ पे वो एक छोटे स्कूल में जाती थी जिसको पाठशाला का नाम दिया गया है। A lot of children from poor families worked in homes doing housework or in the fields of landowners. Many children have to work to earn money. और बहुत सारे ऐसे गरीब घर से बच्चे आते हैं जिनको अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में ही स्कूल वगैरह छोड़कर, खेल कूद छोड़कर ऐसे काम करना पड़ता है जिसकी वजह से वो पैसे कमा सकें। They work on tea shops or sometime in factory or cottage industry, also weave carpets, weave silk sarees, make crackers, polish shoes, etc. और ये अलग अलग टाइप के काम करते हैं, जैसे कहीं चाय के ठेलों पे आपको दिखेंगे, साड़ियाँ जो सिल्क की साड़ियाँ होती है वो बनाते हुए दिखेंगे, कॉबलर आपको दिखेंगे जो मोची होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये जो गरीब घर के लोग होते हैं ये बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना बचपन खो देते हैं अपनी गरीबी की वजह से। They work in unhealthy places. Their bodies are unhealthy due to working in small, dark places. Sometimes they are brought from far off places and forced to work. Sometimes they die due to diseases. About 200 million children in the age group of 6 to 14 work in poor countries. This is called child labor. और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही अनहेल्दी, जो उनकी बॉडी के लिए अच्छी जगहें भी नहीं हैं, डार्क प्लेसेस हैं जैसे अंडर माइंस हो गई, ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो इनकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और इनके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। ऐसे जो बच्चे, छोटे बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे फैक्ट्रीज में होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, इनको कहा जाता है चाइल्ड labor. In India, the government has made education free and compulsory for children below 14 years. In spite of strict laws against child labor, India has the largest number of working children. यानी कि हमारे देश में ऐसा लॉ है कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, एजुकेशन फ्री है और कंपलसरी है, आपको जाना ही है। इतने स्ट्रिक्ट लॉज के बावजूद भी कई ऐसे घर के बच्चे होते हैं जो 14 साल से नीचे होते हैं लेकिन स्कूल्स में नहीं जाते। Why do their parents let them work in these unhealthy places? Don't they love them? Both of them wanted to know. अब नेहा और रवि को ये जानना था कि ऐसी अनहेल्दी जगहों पे उनके माँ बाप उन्हें काम क्यों करने देते हैं, क्या वो उनसे प्यार नहीं करते? Often their parents are too poor and earn too little. The children work to bring home the money needed for the family, said grandfather. By hearing all this, Neha and Ravi understood everything about occupation. तो इसका जवाब देते हुए ग्रैंडफादर ने कहा कि जो उनके घर वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत कम कमाते हैं और उनको आपके बच्चों को भेजना ही पड़ता है ताकि वो फैमिली में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो दादाजी की ये सारी बातें सुनकर नेहा और रवि को ऑक्यूपेशन के बारे में सारी बातें समझ आने लगी। तो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जो एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है।